Just to kindly remind you, please remember the three tips, three messages from Lord Krishna, and of course, our message that we have to think over how do we form sanskars, how we can clean them, and heighten the lifestyle in such a way that we don't form impressions at all. And if we don't form impression at all, then there is no need to clean, there is no need to meditate. And I assure you of that it is possible. How long shall we go on taking medicine until you're healthy? How long you continue meditating until you become totally spiritual? Babuji has reassured in a different way. When one of Lalaji's disciples somehow got astray, meaning he did not recognize Babuji as his successor, and went on doing his puja for years together. One day he happened to meet Babuji Maharaj. कहते हैं हम तो इतने सालों से लाला जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। तो बाबूजी ने जैसे बोलता है ना बाउंसर लगाया उनको, 20-20 सालों तक आप पूजा कर रहे हैं, कब अंत आएगा? वो हमारे लिए भी अप्लाई होता है, कब पहुंचेंगे वहाँ? आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, कोई डरता ही नहीं है। लेकिन take it to the heart. Many people think that I am making a general remark. It is general remark for one and all. There is no exception to this. Don't bring yourself into an exception category. It applies to all. Lord Krishna made it very easier for us. Promised us, do this for a year and see what happens. After next year's Bandara, 30th April Bandara, we'll see what has happened within us. All of us have a very particular type of sanskars. Each individual has a particular tendency, uncommon with other person. There are common sanskars, like related to those sanskars that gravitate towards A, B, and point D. It's a very common. But the very specific ones within that are unique to all of us. Identify those habits, tendencies, and work on them. If you don't want to work on them, once and for all, surrender it to Master and see what he can do. But this surrender of all our activities, thoughts, pains and pleasures, it should be given in one go, not in piecemeal. I would also like to make an announcement towards Satkhol batches. Kindly register yourself. This batch will be open from 15th of May till 15th of June. Those who like to go to Satkhol and relax a bit, they can go. Also, Sunday satsang, Wednesday satsang as usual are open to all at their regular venues. Okay. Next, Bandara, Pujya Acharya Maharaj's birthday, 23rd, 24th, 25th. Okay. It will be from 23rd, it's a Saturday. You can't expect anything better than this, Saturday, Sunday and Monday. So it's lovely. So you cannot tell Chariji excuses, साहब मैं नहीं आ सकता हूँ, 3 महीने और है.
कई लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन 3 महीने से आपको बोल रहा हूँ। और मैंने आपको बताया भी था कि सपोज कोई पूछे कि 24 जुलाई 2024 या 2070, जीने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन 2070 की बात करता हूँ मैं। आप रहोगे तो मैं पहला उठूँ, बोलूँगा कि मैं रहूँगा से। क्यों? कोई भी डेट हो, हमें क्या पड़ी, हम हमेशा के लिए तैयार है। 2050 हो या 2029 हो, हम हमेशा तैयार है। लास्ट मिनट पे नहीं जा सके वो कुछ और बात है, लेकिन हमारी ओर से हमेशा हाँ ही होनी चाहिए। कोई भी भंडारा हो, कोई भी सत्संग हो, जाएंगे। थैंक यू। इतनी तैयारी तो होनी ही चाहिए अभ्यासी के नाते। बोल दिया 24 जुलाई, अरे साहब बहुत काम है ऑफिस में, बहुत ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं बिजनेस में। तो आप फुलफिल करते रहो ऑर्डर्स, दुनिया चलती रहेगी, बार बार हम वापस आते रहेंगे इस दुनिया में। बहुत प्यारी है, मजा करो। जिसको जाना है आगे, उनको हर हमेशा अलर्ट रह के, तैयार रह के, 10 मिनट के बाद भी फिर से भंडारा शुरू हुए वो भी तैयार है। सो हम नेक्स्ट भंडारे की तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो अभी की जो हालत में है वो जाएगी नहीं। ज़रा सोचिए आप, ये भी साइकोलॉजिकल है। Start preparing for the next Bandara. This condition will be digested very fast. हम जानते हैं भंडारा की तैयारी कैसी करनी है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल तैयारी की बात कर रहे हैं। जिनकी बर्थडे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उनकी याद में, चारी जी की याद में डूबे रहो, प्रार्थना करो, मालिक आपके जैसे बनना है, हम तैयार हैं, जो भी सैक्रिफाइस चाहिए करेंगे। कुरान में लिखा गया है कि इब्राहिम को सपना आया कि तुझे सबसे प्यारी जो चीज़ है उसका बलिदान कर दे। तो सोचता ही रहा रात भर, उसको लगा कि मेरा बेटा सबसे प्यारा है। पहाड़ पे ले गए, कत्ल करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। अल्लाह आ गए, ये तो तेरी परीक्षा थी। हमारी बलिदान क्या होगा? बाबूजी ने कहा कि शीश दिए यदि हरी मिले फिर भी सस्ता जान। मैं तो कहता हूँ कि शीश देना तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन अहंकार से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। मर जाऊंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा, है ना? ये ऐसा बड़प्पन क्यों? मैं बार बार वही चीज़ पे हम अटक जाते हैं। बहुत सालों तक सोचता रहा कि बाबूजी महाराज ने 23 सर्कल क्यों बनाए हैं? उसमें सिर्फ 5 माया के सर्कल, और माया से हम डर जाते हैं, और 11 अहंकार के सर्कल। 11 क्यों? अहंकार तो एक ही चीज़ है, लेकिन 11 सर्कल अहंकार के बना दिए, क्योंकि इतना कठिन है वो, इजीली छुटकारा नहीं पाता है उसका। न तो मालिक भी इसमें कुछ कर सकते हैं। दिस कल्टिवेशन ऑफ effacing ourselves, surrendering our ego is Abhyasi's responsibility. That is the main problem. See. माया के चक्कर में से निकलने के लिए दोनों से मदद होती है, मालिक से भी और खुद से। लेकिन ईगो को जब निकालना है
खुद को ही कल्टीवेट करना पड़ेगा से सरेंडर, not just your actions, the fruits of action as Lord Krishna talks about. That's also easier. But मैं ये हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, ये सब घमंड की बातें हैं, इंटेलेक्ट। और जितनी भी चीज़ आत्मा के नज़दीक होती है, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके बाद जो नज़दीक की चीज़ है अहंकार है, उसके बाद की चीज़ है इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट, उसके आगे मन है, उसके बाद ये शरीर है, शरीर के बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन किससे होता है? अपनों से। मैरिड हो तो अपना स्पाउस से या अपनी स्पाउस से, बच्चों के साथ। वैसे अपना डिस्टेंस आत्मा से बढ़ता जाता है। कोई हमारा इंसल्ट करे कि आप ठीक से चलते नहीं हो, आपको चलने को नहीं आता है, इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई बोलता है तू कितना बेवकूफ़ है, तू गधे जैसा है, तेरे में अकल नहीं है, these are all attacks on the things which is closer to your mind, closer to your soul. So आघात लगता है। और सबसे नज़दीक कौन, जिसको हम मानते हैं, इसको छोड़ दो। जब माँ पे कोई गाली देता है तो ब्लड बॉयल होने लगता है ना, क्योंकि वो सबसे नज़दीक की है। अपने स्पाउस से भी कोई इंसल्ट करे, whether you like her or like him or not, doesn't matter. मेरी बीबी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, ब्लड बॉयल होने लग रही। दिस इज ऑल आइडेंटिफिकेशन विथ whom we belong to. सो ऐसे जितनी जितनी चीज़ से हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, घमंड होने लगता है, वो सब ईगो कैटेगरीज में आते हैं। और ये सब एक ही झटके में मालिक को दे देते हैं। माया हो या अहंकार हो, दे दो और फ्री हो जाना है। हमारी साधना सुबह का ध्यान, ध्यान में मई हो जाना, मतलब जो प्राणाहुति आती है, जो वाइब्रेशंस आते हैं, उसके साथ रेजोनेट हो जाए। और आप देखेंगे प्राणाहुति तो ओरिजिनल है, स्रोत से आती है, सोर्स से आती है, तो उसके जो वाइब्रेशन है वो हमेशा हाईएस्ट रहेंगे। जैसे जैसे हमारी प्रगति होती रहेगी, हमारे वाइब्रेशंस भी इतने रिफाइन होते जाएंगे ध्यान में, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो वाइब्रेशन है, प्राणाहुति का वाइब्रेशन एकमय हो जाएगा। आप पाओगे कि प्राणाहुति में भी कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है, हम में भी कुछ वाइब्रेशन नहीं है, एकमयता होने लगती है। दिस इज अनदर वे ऑफ टेस्टिंग if I am progressing or not. Instantly, if I can resonate with the pranahuti that I am receiving, is one of the keys. Second main practice, सतत स्मरण। इसके बारे में बहुत आगे नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हैं। और क्लीनिंग, सतत स्मरण करते हुए भी कई बार जाने अनजाने में संस्कार बन जाते हैं कि सफाई करनी है। रात को सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते कि माफ़ करो हमें, जो अनजाने में भूल हो गई उसके लिए माफ़ कर लो। हमारा 10th मैक्सिम वही है, अनजाने में जो मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, माफ़ मांगना। तो कई बार प्रश्न उठते हैं, जानते हुए जो मिस्टेक की उसकी कैसे माफ़ी मांगेंगे? जानबूझ के जो कुछ भूल किया, मालिक कहते हैं हम नहीं दे सकते हैं, आप
आपने जानबूझ के खुद किया है, परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। Anyway, we have a lot to digest from this seminar. Let's brood over, contemplate, and redirect our life, refine our life. Every moment is an opportunity, and prepare ourselves for the next Pandara so that they, the masters, keep smiling, seeing us grow. Thank you all, and see you soon. Thank you.